दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 230 एंड 231। कल मैंने पढ़े थे आर्टिकल 228 एंड 229। तो ठीक है, चले स्टार्ट करें। ओके। 230 आर्टिकल क्या कहता है? 230 article says extension of jurisdiction of high courts to union territories. 230 article says extension of jurisdiction of high courts to union territories. Number 1, Parliament may by law extend the jurisdiction of a high court to or exclude the jurisdiction of a high court from any union territory. क्या कहा जा रहा है? नंबर 1, पार्लियामेंट में बाय लॉ एक्सटेंड द jurisdiction of a high court to or exclude the jurisdiction of a high court from any union territory. Number 2, where the High Court of a state exercises jurisdiction in relation to a union territory. A, nothing in this constitution shall be construed as empowering the legislature of the state to increase, restrict or abolish that jurisdiction. And B, the reference in Article 227 to the governor shall, in relation to any rules, forms or tables for subordinate court in that territory, be construed as a reference to the President. 231st article. 231st article says 231st article says establishment of a common high court for 2 or more states. Establishment 231st article says establishment of a common high court for 2 or more states. Number 1, notwithstanding anything contained in the preceding provisions of this chapter, Parliament may by law establish a common high court for 2 or more states or for 2 or more states and a union territory. Number 2, in relation to any such high court, A, the reference in Article 217 to the governor of the state shall be construed as a reference to the governors of all the states in relation to which the High Court exercises jurisdiction. B, the reference in Article 227. B क्या कहता है कि the reference in Article 227 to the governor shall, in relation to any rules, forms or tables for subordinate courts, be construed as a reference to the governor of the state in which the subordinate courts are situate. And C, the references in Article 219 and 229 to the state shall be construed as a reference to the state in which the High Court has its principal seat, provided that if such principal seat is in a union territory, the references in Article 219 and 229 to the governor, Public Service Commission, legislature and consolidated fund of the state shall be construed respectively as a references to the President, Union Public Service Commission,
पार्लियामेंट एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ क्या कहा जा रहा है। अनुच्छेद 230 संविधान का अनुच्छेद 230 बताता है कि उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। अनुच्छेद 230 बताता है कि उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। नंबर 1, संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकेगी या किसी संघ राज्य क्षेत्र से किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन कर सकेगी। नंबर 2, जहां किसी राज्य का उच्च न्यायालय किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है, वहां नंबर का इस संविधान की किसी बात का ये अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह उस राज्य के विधानमंडल को उस अधिकारिता में वृद्धि, उसका निर्वर्धन या उत्साधन करने के लिए सशक्त करती है। और नंबर खा उस राज्य क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों के लिए किन्हीं नियमों या प्रारूपों सारणियों के संबंध में अनुच्छेद 227 में राज्यपाल के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे राष्ट्रपति के प्रति निर्देश हैं। अनुच्छेद 231 संविधान का अनुच्छेद 231 अनुच्छेद बताता है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। नंबर 1, इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या अधिक राज्यों और किन्हीं संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकेगी। नंबर 2, किसी ऐसे उच्च न्यायालय के संबंध में नंबर का अनुच्छेद 217 में उस राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश का ये अर्थ लगाया जाएगा कि वे उन सभी राज्यों के राज्यपालों के प्रति निर्देश हैं जिनके संबंध में वे उच्च न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करता है। नंबर खा अधीनस्थ न्यायालयों के लिए किन्हीं नियमों, प्रारूपों या सारणियों के संबंध में अनुच्छेद 227 में राज्यपाल के प्रति निर्देश का ये अर्थ लगाया जाएगा कि वे उस राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश हैं जिसमें वे अधीनस्थ न्यायालय स्थित हैं। और नंबर गा अनुच्छेद 219 और अनुच्छेद 229 में राज्य के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे उस राज्य के प्रति निर्देश हैं जिसमें उस उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान है। परंतु यदि ऐसा मुख्य स्थान किसी संघ राज्य क्षेत्र में है तो अनुच्छेद 219 और अनुच्छेद 229 में राज्य के राज्यपाल, लोक सेवा आयोग, विधानमंडल और संचित निधि के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे क्रमशः राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग, संसद और भारत की संचित निधि के प्रति निर्देश हैं। तो आज मैंने इन 2 अनुच्छेदों को पढ़ा है, अनुच्छेद 230 और अनुच्छेद 231। कल मैं पढ़ूंगी अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय। अनुच्छेद 200 अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ूंगी और नए अनुच्छेद के साथ में आऊँगी। हाँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि ये चैनल कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन अवेयरनेस को बढ़ाता है और इसका लक्ष्य है कि गांव-गांव तक ये चैनल जाए, लोग संविधान से रिलेटेड इस स्पीच को सुने, एक एक अनुच्छेद के ऊपर जो स्पीच मैं दे रही हूँ या जो अनुच्छेद को पढ़ रही हूँ उनको अच्छे से सुने, अच्छे नागरिक बने, यही मेरी आशा है आप लोगों से।
थैंक यू। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।